Hello, aspirants, and welcome back to our channel. So, happy Navratri to everyone, and today we'll have the Hindu analysis dated 7th October 2021. So, let's start today's discussion. The first article states that Telangana withdraws plea in Supreme Court on Krishna water. Okay. Now, from this article, if we see, it is important for us from prelims point of view as it can come that Krishna water is related to which state, which disputes. Then similarly, the other water reservoirs like Godavari, Kaveri, Venganga. So, what are the states or which are the states that have a dispute to related to that? So, first we'll read the article. What does the article states, and then we'll see the interstate disputes of different river in India. Okay, because it is important, it can be a direct question. For example, which of the states are involved in the interstate dispute related to Krishna? So you should know Andhra Pradesh, then Telangana, you should know that. Then if I say Narmada, so you should know MP, Gujarat, then Maharashtra. So if even there was a question, I think so 2020 or 19 ki 3 to 4 states was given, and it stated that which of these states does not has a dispute related to water reservoir. So in India there is not a single state that has no dispute. Every state has disputes on river with the other states. Okay, so Telangana on October 6th withdraw its plea in Supreme Court for equitable approval of the Krishna basin as an insurance given by the center, because when there was a dispute between this, there was a proper board which was set up, Krishna River Board management, which decided that they will get the proper shares of water. So, Telangana has withdrew its petition. Appearing before the bench of Justice D.Y. Chandrachud, Telangana in the application said Union Minister in a meeting stated that if the states withdraw its cases from the Supreme Court, the centre will positively consider to form a tribunal. Now, the reason why Telangana withdrew its petition, there is a very single reason, that is that Mr. Chandrachud said that if the state will withdraw it, they will form a proper tribunal, or we can say a proper body which will help you to get a this proper water division. So state river water dispute of 1956 के अंडर ये चीज़ आता है कि इफ़ देर इज़ अ डिस्प्यूट दे विल फॉर्म अ बॉडी एंड ट्रिब्यूनल सो दैट प्रॉपर वाटर डिवीजन हो सके स्टेट्स के बीच में. ठीक है. सेकेंड थिंग इज लीगल ओपिनियन. व्हाट डज अ लीगल ओपिनियन स्टेट्स दैट taking legal opinion before forming a new tribunal on the issues of Krishna was necessary. ठीक है. सो दे सेड कि बिफोर फॉर्मिंग अ बॉडी, बिफोर फॉर्मिंग अ प्रॉपर ट्रिब्यूनल, दे विल हैव अ प्रॉपर लीगल वी कैन से डिस्कशंस ऑन इट. जो ये नया ट्रिब्यूनल बनेगा, इट विल बी बाय द नेम ऑफ कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल. ठीक है. सेकेंड बोलेंगे क्योंकि फर्स्ट वैसा बॉडी पहले ही बन चुका था. सो और ये एक्चुअली बॉडी था, तो उसी की तरह सेकेंड ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा सो दैट इसके रिलेटेड डिस्कशंस हो सके. देन इन द प्ली, Telangana had complained to the Supreme Court that it had written a letter to the centre in 2014 to constitute a tribunal under Section 3. ठीक है. उनकी प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनली उनको ये हक दिया जाता है कि अगर कुछ ऐसा रीजंस हो रहा है, जो डिस्प्यूट्स हो रहा है, तो दे कैन साइन अ पेटिशन और दे कैन कम टू सुप्रीम कोर्ट. सो सेक्शन 3 के अंडर 2014 इंटर स्टेट डिस्प्यूट वाटर डिस्प्यूट एक्ट जो है, हमने अभी यहाँ पे देखा था, जो कि किस ईयर में आया था, 1956 में. तो 1956 के एक्ट का सेक्शन 3 ये चीज़ बोलता है कि इफ़ देर इज़ अ डिस्टर्बेंस और इफ़ देर इज़ अ डिस्प्यूट, सुप्रीम कोर्ट कैन फॉर्म यू एंड गिव अ ट्रिब्यूनल. उसके बेसिस पे तेलंगाना ने 2014 में ये ट्रिब्यूनल बनाने की बात की थी. ठीक है. तो while the matter was pending in the Supreme Court, Telangana said the union minister during a meeting to put forward the proposal of making a tribunal, and if they made it, they can withdraw the पेटिशन. सो दैट इज़ अ वेरी सिंगल रीज़न कि उन्होंने पेटिशन वापस ले लिया है. ठीक है. सो उनका यही मानना है कि ये लोग ट्रिब्यूनल बना के देंगे. अब नेक्स्ट चीज़ जो हम इसमें देखेंगे दैट इज़ कृष्णा रिवर के बारे में. ठीक है. कि पहले हम लोग कृष्णा रिवर का फीचर देख लेते हैं थोड़ा सा, एंड देन उसके बारे में आगे देखेंगे. सबसे पहले अगर मैं मैप के थ्रू बताऊँ, दिस आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिवर्स जो एक्चुअली डिस्प्यूटेड रिवर्स हम बोल सकते हैं. ठीक है. इंपॉर्टेंट तो सभी रिवर्स हैं, रिजर्वायर्स हैं हमारे, बट कुछ इंपॉर्टेंट डिस्प्यूटेड हैं. जैसे कि ब्रह्मपुत्रा से आता है ये पानी, देन नर्मदा, गंगा, यमुना,
कावेरी के रिलेटेड अगर हम देखें, कावेरी के रिलेटेड नहीं, गोदावरी के रिलेटेड डिस्प्यूट है महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटक और एमपी में, क्योंकि गोदावरी यहाँ से जाता है। सो इसकी अलग अलग ट्रिब्यूटीज भी है जिसके जैसे डिस्प्यूट होता है। देन अगर मैं नर्मदा की बात करूँ, नर्मदा इज़ यर, नर्मदा का वाटर प्रॉपर हमारे मिडिल से जाता है, तो एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। देन रवि एंड ब्यास के लिए स्टेट्स जो लड़ रहे हैं दैट इज़ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। पेरियार अगर हम बात करें, ये केरला और कर्नाटका तमिलनाडु के बीच से आता है। पेरियार इज समवेयर ईयर ओनली, तो इनके बीच का डिस्प्यूट। एंड कृष्णा तो महाराष्ट्र, क्योंकि कृष्णा के लिए महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश होता है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश होता है, कर्नाटका तेलंगाना होता है, ऐसे डिस्प्यूट्स हैं इसके रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं अबाउट कृष्णा रिवर डिस्प्यूट्स। सो कृष्णा रिवर डिस्प्यूट्स हमने कुछ टाइम पहले भी देखा था कि एक डैम प्रोजेक्ट के बारे में बोला था, श्रीशैलम, इफ़ यू रिमेंबर, श्रीशैलम डैम प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो कृष्णा रिवर बॉडी है या कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड है, उनको अपील किया था कि इस प्रोजेक्ट को मना करो, बिकॉज ये हमारे मतलब तेलंगाना ने प्रोजेक्ट लाया था और आंध्र प्रदेश ने बोला था कि ये प्रोजेक्ट जो एनवायरनमेंट के लिए ख़राब है, तो उसको स्टॉप करने के लिए उन्होंने ही बात की थी। देन वाटर, जब ये क्वेश्चन आता है कि वाटर डिवीजन होता कैसे आप पानी डिवाइड करोगे दो स्टेट में। ठीक है, अगर मैं कृष्णा की बात करूं तो जब तेलंगाना डिवाइड हुआ था आंध्र प्रदेश से, क्योंकि ये जो आंध्र प्रदेश का केस जो अभी हमने देखा, ठीक है, दैट इज़ बिटवीन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, तो इनका डिवीजन कैसा होता है ये आप याद रख सकते हो शायद प्रीलिम में आज, बिकॉज कृष्णा के रिवर के रिलेटेड बहुत न्यूज़ था रिसेंटली। तो इसका डिवीजन कैसा होता है, ये स्प्लिट होता है दोनों में ही 66-34 के रेशियो पे। ठीक है, तो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जो है मतलब पहले 66-34 के रेशियो पे डिवाइड होता था, बट अब जैसे इन्होंने बोला कि नया ट्रिब्यूनल बनेगा तो वो लोग शायद इसके वाटर डिवीजन अलग बेसिस पे करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारा, ये चीज़ मैंने आपको बता दी, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कौन से अलग अलग रिवर्स है, रवि है, ब्यास है, नर्मदा है, कृष्णा है, गोदावरी है, पेरियार है। ठीक है, सबके रिलेटेड कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स है, सब बाकी सब स्टेट्स में। ठीक है, सो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगर नेक्स्ट आर्टिकल की हम बात करें, इट इज़ स्पीकिंग अबाउट द पॉल्यूशन की फाइन पार्टिकलेट्स। ठीक है, कुछ टाइम पहले हमने जब नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स या नेशनल एयर क्वालिटी कमीशन के बारे में बात किया था, उस टाइम पे हमने देखा था कि जो एयर है, जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उसकी पॉल्यूशंस को हम पीएम में करते हैं, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10, इसके बेसिस पे हम उसको डिवाइड करते हैं कि कौन सा मात्रा ज़्यादा है हवा में। सो एक रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज़ की गई थी, ये रिसेंट डेटा जो बताता है कि यूपी इज़ अ स्टेट दैट हैज़ टॉप द स्टेट्स एमिटिंग द फाइन पार्टिकुलेट मैटर अकॉर्डिंग टू अ स्टडी का ये मानना है। ठीक है, सो द टॉप पोल्यूटर्स की अगर हम बात करें, डिपेंडिंग ऑन द डेटा सोर्सेज, यूपी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एमिशन रेंजेस फ्रॉम 588 to 976 किलोटन्स। ठीक है, दैट इज़ अ वेरी बिग नंबर। किलोटन्स का एमिशन जो है यूपी अकेले करता है। देन अगर डेटा अगर आप देखोगे यहाँ पे, यूपी के बाद सेकंड लार्जेस्ट स्टेट जो है महाराष्ट्र है, देन एमपी, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, राजस्थान है और फिर वेस्ट बंगाल है। सबसे ज़्यादा यूपी करता है, इफ़ यू विल सी द नंबर दैट इज़ 661, टोटल जो है वो 976 है, महाराष्ट्र का 429 है। ठीक है, एमपी का भी डिफर करता है, तो हाईएस्ट इज़ यूपी। अगर रेंज करने बोला तो आप ऐसे याद रखो कि उसको आप प्रॉपर अरेंजमेंट कर पाए। सो उत्तर प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट एमिटर ऑफ पीएम दैट इज़ पार्टिकुलेट मैटर 2.5, द क्लास ऑफ पार्टिकुलेट मैटर कंसिडर्ड मोस्ट हार्मफुल फॉर दी हेल्थ। इसके वजह से अस्थमा, कैंसर नहीं बोल सकते, अस्थमा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स बहुत होती है। सो इट इज़ द मोस्ट हार्मफुल वी कैन से मैटर फॉर आवर हेल्थ अकॉर्डिंग टू द काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर, अकॉर्डिंग टू द काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर के रिपोर्ट के हिसाब से। द काउंसिल रिसर्च बॉडी लुक्ड 5 मोस्ट रिलेबल डेटास इंटरनेशनल एंड नेशनल दैट हैव ट्रैक दी मेजर। तो ये सिंगल डेटा के बेसिस पे नहीं है, इसकी जो बेसिस बनी है वो 5 अलग अलग डेटास के हिसाब से उन्होंने ये नंबरिंग्स रिलीज़ की है। ठीक है, सो महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान, 2 फीचर्स द लिस्ट ऑफ दिस रैंकिंग।
ठीक है, इसमें और भी स्टेट्स हैं, सबसे हाईएस्ट जो है हमारा यूपी है। डेटा सोर्सेज की अगर हम बात करें तो जो हमारा 5 डेटा सोर्सेज जिनको इन्होंने रेफर किया है, ठीक है, तो सबसे पहला है जिसको हम, यू कैन राइट दी फुल फॉर्म बिकॉज प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एडगर की अगर मैं बात करूं तो एमिशन डेटाबेस फॉर ग्लोबल एटमॉस्फेरिक रिसर्च, ठीक है, एमिशन डेटाबेस फॉर ग्लोबल एटमॉस्फेरिक रिसर्च, ये पहला है। उसके बाद सेकंड अगर मैं बात करूं तो दैट इज़, ये जो है ये यूरोपियन कमीशन के थ्रू से मेंटेन किया जाता है, ठीक है, एयर क्वालिटी का। उसके बाद आता है एक्लिप्स। एक्लिप्स का क्या फुल फॉर्म हो सकता है, सॉरी, एक्लिप्स की फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो दैट इज इवैल्यूएटिंग द क्लाइमेटिक एंड एयर क्वालिटी इम्पैक्ट of short-lived pollutants. I'll repeat, that is evaluating the climate and air quality impact for short-lived pollutants. ये किनके द्वारा मेंटेन किया जाता है, तो इट इज़ मेंटेन बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर अप्लाइड सिस्टम एनालिसिस, जिसको हम IIASA भी बोलते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अप्लाइड सिस्टम एनालिसिस। और एडगर किसके तरफ से मैंने आपको बताया था, तो ये एक जॉइंट रिसर्च है हमारा यूरोपियन कमीशन के द्वारा, यूरोपियन कमीशन के द्वारा, ठीक है। एक्लिप्स के बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस नेक्स्ट जो बॉडी है जो डेटा इन्होंने रेफर किया दैट इज़ रियस। रियस क्या है, रीजनल एमिशन इन्वेंट्री इन एशिया, ठीक है, रीजनल एमिशन इन्वेंट्री इन एशिया। ये जो है ये हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट स्टडी, जो जापान की बॉडी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट स्टडी जापान बेस्ड बॉडी है, इनसे मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है SMOG। SMOG क्या है, SMOG इज़ द स्पेशिएटेड मल्टी पोल्यूटर जनरेटर, स्पेशिएटेड मल्टी पोल्यूटर जनरेटर, ठीक है। ये जो है ये हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट दैट इज़ IIT के तरफ से मेंटेन किया जाता है स्मॉग का। और इसके बाद जो लास्ट बॉडी है IIT बॉम्बे, हाँ IIT बॉम्बे की तरफ से ये डेवलप किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो लास्ट, ये हमने 4 लिख दी, फिफ्थ बॉडी जो हमारी है दैट इज़ ये एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उनके तरफ से, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, जिसको हम तेरी भी बोलते हैं, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। तो ये 5 अलग अलग बॉडीज़ हैं जिसके डेटा इसको सम्मान करके एक डेटा बनाया है। किसने बनाया है, तो मैंने आपको काउंसिल का नाम भी बताया जिसको हम CEEW बोलते हैं, काउंसिल ऑफ एनर्जी एंड एनवायरनमेंट एंड वाटर, काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर। सो उन्होंने ये 5 डेटा को समझ करके डेटा रिलीज़ किया है। बॉडी के नाम थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए कि ये वाला रिपोर्ट किसने रिलीज़ किया है, स्मॉग कौन रिलीज़ करता है, तेरी क्या बॉडी है, देन जापान की जो बॉडी मैंने आपको बताया, ठीक है, रेस वो कौन सी बॉडी है, देन एडगर किसके तरफ से मेंटेन किया जाता है, यूपी का जो अभी पर्टिकुलर मैटर का रिपोर्ट निकाला वो किसने निकाला, दैट थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट थिंग इज द कॉमन पोल्यूटेंट। कॉमन पोल्यूटेंट अगर हम बात करें तो कौन सी पोल्यूटेंट्स इन्होंने नापी है ये देखी है इसमें, जैसे मैंने बताया था PM 2.5, देन PM 10, उसके बाद NOx क्या हो जाता है आपका, दैट इज नाइट्रियस ऑक्साइड, देन SO2, ठीक है, SO2 आपका हो जाएगा सल्फर ऑक्साइड, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड NH3, ये हमारा NH3 क्या है, अमोनिया हो गया, एंड नॉन मीथेन वॉटरलाइट ऑर्गेनिक कंपोनेंट, जिसको हम नॉन मीथेन वॉटरलाइट ऑर्गेनिक कंपोनेंट, ये सारे कॉमन कंपाउंड्स हैं जिसको मेजर किए जाते हैं इस डेटा के अंडर। 1 2 3 4 5 6 7 7 अलग अलग कंपोनेंट्स की बात की हमने, ठीक है। द सीव दैट इज CEEW एनालिसिस फाउंड सिग्निफिकेंट वेरिएशन इन द एस्टिमेशन बाय वेरियस सोर्सेज, ठीक है। 37 ऑफ दी जो ये दोनों है दैट इज PM 2.5 और PM 10, ये दोनों का 37% ऑफ द पॉल्यूटेंट मिला ना, और बाकी जो नाइट्रीजियस है, सल्फर है, ये सब का जो है उसका रिमेनिंग अप्रॉक्सीमेटली सबको मिला के ये 50 है, ये सबको बाकी सब जो है। इंडिया हैज़ अ नेशनल क्लीन एयर कैंपेन दैट एम्स टू रिड्यूस द पोल्यूशन
in 122 most pollutant cities of India. by 2000 what by 2024 तक एम है कि इंडिया के 122 सिटीज़ में से पॉल्यूटेंट्स रिड्यूस करने हैं. टू मीट कितने परसेंट, ये भी आप याद रख सकते हो, डाइट स्टेटमेंट आ सकता है 20-30%. ठीक है, 20-30% रिड्यूस करना है कार्बन एमिशन या जो ग्रीन हाउस एमिशन रिलीज हो रहा है. ठीक है, सो ये डेटा टाइप डेटा के हिसाब से हमारे लिए इंपॉर्टेंट था. आई होप सो इसकी जो नाम है आप याद रखो ताकि आगे जाके आपको इसको देखना ना पड़े. ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूज़. इसके रिलेटेड न्यूज़ तो एक हफ्ते से आ रही है. जब हमने ऑलमोस्ट ये हफ्ते के स्टार्टिंग में देखा था कि जब चाइनीज़ ने या चाइना ने अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया, उस टाइम पर उन्होंने अपने कुछ जेट्स भेजे थे जो कि ताइवान की इकोनॉमिक जोन के अंडर एंटर हुआ. एंड अभी जो है ताइवान का ये मानना है कि ये हमारे 40 सालों में और भी सिचुएशंस ख़राब होती जा रही है. ठीक है, आर्टिकल हम पढ़ेंगे बट पहले मैप पे भी देख लेते हैं. मैप हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये साल ताइवान के रिलेटेड बहुत न्यूज़ आए हैं. जैसे मैं बात करूँ, इंडिया ताइवान के रिलेटेड आया था क्योंकि जो चिप सी इंडिया में जो है कुछ कंपनीज बंद हो गए थे. देन हमने कल भी देखा जो इंडिया और ताइवान के रिलेशंस पढ़े थे हमने. सबसे पहली चीज़ इंडिया ताइवान के रिलीजन, जोग्राफिकल रिलीजन में सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ साउथ चाइना सी. क्वेश्चन कैसे आता है, रिसेंटली 2020 में या फिर उससे पहले एक क्वेश्चन आया था कि चाइना को ताइवान से जो है वो ये ताइवान स्टेट डिवाइड करता है, साउथ चाइना सी जिधर घूमती है, और नीचे से लुजोन स्टेट डिवाइड करता है. डायरेक्ट क्वेश्चन आया था ये कि जो साउथ चाइना सी है वो चाइना और ताइवान को ताइवान स्टेट से डिवाइड करता है, नीचे फिलीपींस जो है फिलीपींस को लुजोन स्टेट से डिवाइड करता है. अगर हम बात करें यहाँ पे प्रॉपर इनकी 9 डैश लाइंस है. इफ़ यू हैव स्टडीड, कुछ टाइम पहले हमने पढ़ा था. ये 9 डैश लाइन के अंदर बहुत सारे कंट्रीज़ के अलग अलग स्टेट्स हैं जो आपको याद रखना ज़रूरी है. ताइवान के पास ताइवान स्टेट है, यहाँ पे नीचे फिलीपींस है, फिलीपींस के पास लुजोन स्ट्रेट है. ठीक है, जोग्राफिकल लोकेशन जो इम्पोर्टेंट है दैट इज साउथ चाइना सी. द डे आफ्टर चाइनाज एयरफोर्स रिकॉर्ड कितने 56 एयरक्राफ्ट उन्होंने इकोनॉमिक जोन में एंटर किए थे. इट इज़ डिस्क्राइब कि जो हमारे ताइवान के मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर, उनका ये बोलना है कि इट हैज़ वर्सन द सिचुएशन. ठीक है, अभी क्या हुआ था रिसेंटली जो है चाइना के और यूएसए के जो प्रेसिडेंट्स का मीट हुआ था, जिसको हमने बिडेनजिंग मीट भी बोली है या बिडेनजिंग टॉक भी बोला है. उसमें ये चीज़ बोला गया कि दोनों ने ताइवान के रिलेटेड भी बात किया एंड उन्होंने ये चीज़ बोला कि ठीक है, विल वर्क अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट्स. ठीक है, एग्रीमेंट्स क्यों, तो मतलब यहाँ पर इंटरफेरेंस उतना ना हो इनके इकोनॉमिक जोन में. Separately, on Tuesday, U.S. President Joe Biden said that he has spoken to Chinese President Xi Jinping on the Taiwan issues and both agreed to abide by the agreement. Mr. Biden also approved to refer their last phone call. उन्होंने ये भी बोला कि हमने इस पे फ़ोन कॉल्स एंड डिस्कशंस भी किए हैं. ठीक है, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट सेड दैट इट वाज वेरी कंसर्न. क्योंकि क्या हुआ था, ये सब जब चीज़ हुआ तो यूएस ने चाइना को सीधा बोला कि इट इज़ वेरी रिस्की एंड इट इज़ या बोल सकते हैं डिसेबिलिटी या फिर डिसबैलेंसिंग है जो चाइना अभी कर रहा है फिलहाल ताइवान के साथ. ताइवान बिलोंग्स टू चाइना एंड यूएस इज़ इन नो पोजीशन टू मेक अ रिस्पॉन्सिबल मार्क. जो ये स्टेटमेंट उन्होंने बोला कि द रीसेंट डिसीजन द रीसेंट वर्क बाय, हाँ ये स्टेटमेंट था, द यूएस कॉल्ड चाइनाज लेटेस्ट एक्शन एज रिस्की एंड डिसस्टेबिलिटिंग. तो यही जो स्टेटमेंट उन्होंने बोला, तो चाइना का ये बोलना है कि ताइवान हमारा पार्ट है, यूएस किसी भी पोजीशन में नहीं रहता कि वो हमारे किसी भी पार्ट के रिलेटेड कुछ भी बात करे. मिस हुआन also hit out the US arms sale, including the launching of 750 million arms sales in Taiwan. US military aircraft Taiwan frequent selling of, क्योंकि US एंड ताइवान के बीच में अगर हम बात करें, US एंड ताइवान ऑल्सो हैज़ अ वेरी गुड रिलेशन व्हेन इट कम्स टू एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि ताइवान की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है, वो एडवांस या डेवलप्ड बोल सकते हैं. चैलेंजेस टू कंटिन्यू में ये चीज़ बताया गया है कि यूएस डेप्यूटी सेक्रेटरी ने जिनका नाम है वेडिन शर्मन, उन्होंने करेंटली इंडिया को विजिट किया था एंड करंट विजिट में उन्होंने भी ये बोला कि चाइना ऑफिशियल के साथ हमने बात किया है, रिलेशंस ठीक करने की कोशिश की, बट लेट्स सी आगे क्या होता है. ये आर्टिकल से आप क्या याद रखोगे, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि कितने एयरक्राफ्ट घुसे थे, कितने जेट घुसे थे. क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका लोकेशन.
ठीक है। अब लोकेशन में आप अगर मैं बात करूँ तो क्या चीज़ें आप याद रख सकते हो, तो एक ताइवान स्ट्रेट, दूसरा लूजॉन स्ट्रेट, कि अगर ये क्वेश्चन ताइवान और फिलीपींस को कौन सा स्टेट अलग करता है, लूजॉन स्टेट। कौन सी इंपॉर्टेंट सी है, साउथ चाइना सी है, क्योंकि साउथ चाइना सी बहुत आई थिंक सो 2018 से हमेशा से डिस्प्यूटेड एंड मोस्ट हम बोल सकते हैं डिस्कस्ड टॉपिक रही है। फिर पैसिफिक ओशन में आता है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, और ये बाकी के नाम इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। और रिवर्स अगर मैं बात करूँ, ताइवान की 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स है, चोशू एंड क्वाम्पिंग, ठीक है। दे आर द 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ ताइवान। वो आप जोग्राफिकली अगर आप याद रखना चाहते हो तो आप उसको याद रख सकते हो, ठीक है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल की अगर हम बात करें तो इट स्टेट दैट इंडिया यूएस टू वर्क क्लोजली ऑन अफगानिस्तान। अब रिसेंटली अगर हम बात करें तो हमारे जो सेक्रेटरी हैं, डिप्टी सेक्रेटरी, वो डिस्कशंस हुई थी उनकी यूएस के साथ, एंड बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करते करते दे ऑल्सो थॉट कि क्योंकि यूएस और इंडिया की बात करें तो दोनों की अफगानिस्तान के साथ बहुत सारे ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट्स होते थे। अभी अगर अफगानिस्तान में बात करूं, अफगानिस्तान में एक डैम पहले बनाया था उन्होंने, सलीम डैम। करेंटली भी एक डैम वर्किंग चालू थी वहाँ पे, जो सेकेंड लार्जेस्ट डैम होती है अफगानिस्तान की, बट बिकॉज ऑफ द इन्वेजन ऑफ दैट मिलिट्री ग्रुप कहीं ना कहीं वो वर्किंग भी स्टॉप हो चुकी है। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि आगे क्या होगा। ये जो डिस्कशन हुआ था यूएस एंड इंडिया के बीच में, दैट वॉज रिलेटेड टू दी वैक्सीन एक्सपोर्ट। So the Foreign Secretary Harsh Shringla on Wednesday held a talk with visiting US Deputy Secretary of the State Wendy Sherman, क्योंकि वेंडी शर्मन अभी ऊपर हमने देखा था उन्होंने इंडिया से डिस्कशंस किए थे इसके रिलेटेड, who later said that India-US partnership was indispensable for both the countries and the world. Given the past-phase development in South Asia, especially in Afghanistan, India and US will remain closely engaged both for the futures of Afghanistan and peace and stability. So ये चीज़ बोला क्योंकि अफगानिस्तान अगर हम बात करें साउथ एशिया की, ठीक है, ये इंडिया हो गया, प्रॉपर अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया में आता है या फिर साउथ एशिया में आता है, वन ऑफ दी मोस्ट हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट कंट्री है वो हमारे लिए। सो उसके लिए जो उसके देखभाल के लिए हम बोल सकते हैं कि उनके लिए जो वर्क करना पड़े तो यूएस इंडिया साथ में आकर उसके लिए वर्क करेगा। The delivery of the systems to India later this year is expected to trigger the sanction of US काटसा। काटसा अगर मैं बात करूं, सिंपल मैं बता देती हूँ इसका हुआ क्या था। काटसा क्या होता है कि अगर मैं एक एग्जाम्पल अगर मैं देती हूँ कि यूएस और इंडिया के बीच में एक रिलेशन है, ठीक है। यूएस और इंडिया जो है वो एक दूसरे के साथ हम बोल सकते हैं कि आर्मी या फिर डिफेंस मैन्युफैक्चर्स करता है, ठीक है, यूएस और इंडिया। अभी क्या हुआ कि इंडिया के दुश्मन या इंडिया के दुश्मन पाकिस्तान है, इंडिया के दुश्मन चाइना है, हम कंसिडर कर लेते हैं इंडिया के ये दोनों दुश्मन है, ठीक है। तो एक ट्रीटी है मेरी या फिर इंडिया का एक ट्रीटी है प्रॉपर, जिसको हम काटसा करके बोलेंगे, ठीक है। यूएस की ट्रीटी लेते हैं कि यूएस के 2 दुश्मन हैं फिलहाल, चाइना है, ठीक है, और हाँ चाइना रशिया ले लेते हैं, चाइना रशिया है, ठीक है। और वेरस अगर बात करें तो इंडिया का रिलेशन चाइना रशिया के साथ बहुत अच्छा है। यूएस की एक ट्रीटी है जिसको हम काटसा बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है काउंटरिंग द अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट। इसमें क्या होता है कि अगर यूएस का कोई भी दोस्त है, अगर वो यूएस के दुश्मन के साथ कोई भी ट्रीटी साइन करेगा तो वो अपने दोस्त को भी उस लिस्ट में डाल देगा जिसमें वो उसके साथ ट्रेड ना करे या वो उसके साथ कोई आगे का रिलेशन ना निकाले। रिसेंटली 2021 के आई थिंक सो मई या जून में ये न्यूज़ आया था, क्योंकि हुआ क्या था, इंडिया ने S-400 जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो रशिया से मंगवाई थी, ठीक है। और वेरस यूएस ने जो है रशिया को काटसा के लिस्ट में डाला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उठा था कि अगर इंडिया इसके साथ रिलेशन बना रहा है कि इंडिया को भी वो काटसा लिस्ट में ना डाल दे, ठीक है। सो बट इंडिया ने हमेशा से क्या साइन किया, इंडिया ने इंडिपेंडेंस से पहले भी एक ट्रीटी रखते थे, दैट वाज एनएमए, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, हम किसी के साथ नहीं हैं। सेम चीज़ भी आज भी फॉलो करता है इंडिया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के नाम पे नहीं करता, बट बीइंग एन सॉवरन एंड इंडिपेंडेंट कंट्री उन्होंने इंडिया कभी भी किसी कंट्री को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं दिखाता है। नहीं तो अगर ऐसा कुछ होगा तो शायद इंडिया को भी वो काटसा में डाल दे। काटसा का फुल फॉर्म याद रखो, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट,
ठीक है। तो ये यूएस का एक एक्ट है जिसमें कि अगर यूएस की किसी भी दुश्मन कंट्री या यूएस ने जिस कंट्रीज को उस लिस्ट में रखा है उसके साथ अगर आप ट्रेड करो तो वो आपके साथ ट्रेड करना बंद कर देगा। तो वही बोला है कि अगर ऐसा हमारा रिलेशन जो है फिलहाल ठीक है, बट ये साल जो है इंडिया को रशिया जो है वो ये S-400 की डिलीवरी देने वाला है, तो कहीं ना कहीं ये रिलेशन ख़राब ना हो जाए। अभी हम लोग रिलेशन क्लोजली अच्छे से मनाने की बात कर रहे हैं, बट इस ट्रीटी की ये डिलीवरी की वजह से चीज़ें ख़राब ना हो। इंडिया को नहीं कर पाए वो लोग कभी भी, क्योंकि इंडिया ने कभी भी किसी को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं दिया। इंडिया ने पीछे से ज़रूर सपोर्ट दिया बट कभी भी फ्रंट पे नहीं आया, बिकॉज पता है कि शायद नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं उसके। So India and US are expected to meet for a number of bilateral functions over the next few weeks, including the defense policy dialogues and this joint working groups. So ये 2+2 का एक उनका मीटिंग होगा, हम बोल सकते हैं अक्टूबर, ये टेररिज्म में भी रिसेंटली अक्टूबर में 2+2 मीटिंग उनकी हुई थी। नेक्स्ट इज द वैक्सीन पार्टनरशिप। Mr. Sherman and Mr. Shringla also spoke at the length about the Quad vaccine partnership, which will entail the manufacturing of 1 million J&J American vaccines in India by 2022, and said the sources but denied that the issues of clauses of India insist. ये चीज़ बोला है कि क्वाड की कंट्रीज़ को प्रॉपर वैक्सीन मिल सके ताकि क्वाड कंट्रीज़ प्रॉपर कोविड फ्री हो जाए। एंड उन्होंने बोला कि हम प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग 2022 तक देंगे, ये बोला है। फिलहाल कोई ट्रीटी उस पर साइन नहीं हुई है, सो हम डायरेक्ट कोई स्टेटमेंट इसके रिलेटेड अभी नहीं दे सकते। आगे जाके अभी मिस्टर शर्मन की मुंबई में भी विजिट होने वाली है, और लेट्स सी और क्या क्या डिस्कशंस या टॉपिक्स पर डिसाइड करते हैं वो लोग। सो ये आर्टिकल में आप क्या याद रखोगे, काटसा क्या है, काटसा किस कंट्री के रिलेटेड है, दैट इज़ यूएसए। रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों था, इट वॉज बिकॉज ऑफ रशिया इंडिया। क्यों रशिया इंडिया, क्योंकि रशिया से जो मैन्युफैक्चरिंग आने वाली थी दैट वाज S-400, इंडिया को उन्होंने रशिया को काटसा लिस्ट में डाला है। अब वही इंडिया के लिए था कि हमको ना डाल दे, तो इसके लिए काटसा याद होना चाहिए, काटसा है क्या। ठीक है, एक आपको ओवरव्यू दे दूँ काटसा के बारे में इफ़ यू वांट। सो काटसा का फॉर्म मैंने बताया, दैट इज काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू दी सैंक्शन एक्ट, दैट इज काटसा। ठीक है, एंड इट इज़ US फेडरल लॉ दैट अभी तक कौन से लोग हैं, तो ईरान हो गए, नॉर्थ कोरिया हो गए और रशिया हो गए। ये 3 कंट्रीज़ हैं जो फिलहाल काटसा के अंडर लिस्टेड है। ईरान के साथ कोई डील नहीं करेगा US, फिर हमारा नॉर्थ कोरिया के साथ वैसे भी कोई करना नहीं चाहेगा, और रशिया। ठीक है, सो ये 3 के साथ फिलहाल वो लोग ने इनको ढाला है तीनों को। और काटसा का जो एनैक्टमेंट है प्रॉपर, उसको हम CATT जो भी बोलते हैं उसको, ये आपको याद रखना है। और इसकी जो प्रॉपर, ऐसा नहीं कि वो किसी भी कंट्री के ऊपर डायरेक्ट करते हैं, इसके अगेंस्ट स्टेटमेंट पास होता है, एक्ट पास होता है, एंड देन उसकी कंट्रीज़ के अगेंस्ट वो किसी भी तरह का रूलिंग करते हैं। सो आपको इतना इनडेप्थ नहीं डालना काटसा किसी और कंट्री का, तो ये सिर्फ पूछ सकते हैं कि किस कंट्री के रिलेटेड और इंडिया के कंटेस्ट में। तो आई होप सो आज का आर्टिकल आपको क्लियरली समझा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।